خواجہ آصف اہل یا نااہل، فیصلہ کل ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اقامہ کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ ندیم افضل چند کل تک جالے تھے، آج کھلاڑی بن گئے۔ منڈی بہاؤالدین کے جلسے میں تحریک انصاف نے باقاعدہ شمولیت کا اعلان۔ عمران خان کہتے ہیں ندیم افضل چند کی شمولیت پر پوری پارٹی خوش ہے، اقتدار میں آ کر امیر اور غریب کے لیے ایک ہی پالیسی بنائیں گے۔ لاڈلے کو اوپر سے حکم لینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں تیر پر مہر لگا دی۔ نواز شریف کی تنقید، کہتے ہیں کپتان لاہور سے بھاگنے کی ہیٹ ٹرک کر چکے ہیں۔ عمران نیا پاکستان بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے مزدور استعمال کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا الزام، کہتے ہیں سینٹ الیکشن ٹریلر تھا، عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی۔ لاہور میں ساس نے بہو کو آگ لگا دی، 90% جسم جھلس گیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا، ملزمہ فرار گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ چیف جسٹس زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے بالا کوٹ پہنچ گئے۔ ہسپتالوں میں سہولیات کے فقدان پر برہم، تعلیم کی صورتحال پر بھی اظہار تشویش۔ کیا کچھ لوگ قانون سے بالا تر ہیں؟ کیا کروڑوں کا نقصان کرنے والے چہیتے ہیں؟ فیض آباد دھرنا کیس میں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برہم، واضح کر دیا یہ ملک اشاروں پر نہیں چلے گا۔ پیمرا کی کارکردگی پر بھی اظہار ناراضی۔ جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ بجٹ میں ساتھ دینے کی پیشکش، 27 اپریل سے MMA کا باضابطہ آغاز کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کہتے ہیں انہیں جماعت اسلامی کے فیصلے کا علم نہیں۔ PSP نے مردم شماری کے نتائج سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ کراچی کی آبادی غلط گننے اور جانبداری کا الزام، تھرڈ پارٹی آڈٹ کی اپیل کر دی۔ اور مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر میں قاتلانہ حملہ، کانگریس رہنما غلام نبی پٹیل ہلاک ہو گئے۔ پروگرام بجٹ ایک جائزہ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان۔ بجٹ ایک جائزہ کی جو یہ سیریز ہے ہماری، پچھلے ایک ہفتے سے ہم انہی ٹائم سلاٹ میں اس سیریز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے سیکٹر اسپیسیفک جن ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کیا اپنے سلاٹ میں، اس میں ایگریکلچر گروتھ پہ ہم نے بات کی، ہم نے پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر کو ڈسکس کیا، پاکستان میں ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ڈسکس کیا، ایکویٹی مارکیٹ کے اوپر ہم نے اسپیشل پروگرام کیا، ٹیکسیشن ایشوز کے حوالے سے، اسپیشلی جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تھی اس کی جزیات کے حوالے سے اسپیشل پروگرام کیا، اور آج ہم بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خطے کے لیے گیم چینجر ہوگا، نہ صرف خطے کے لیے گیم چینجر جبکہ پاکستان کے لیے فیٹ چینجر ہوگا۔ تو یہ چائنا پاکستان کی جو دوستی ہے مزید مستحکم ہوگی، اور یقینی طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سی پیک کے اوپر کام ہوا ہے تو دنیا کے وہ ممالک جن سے ہمارے مثالی تعلقات نہیں بھی رہے تھے، وہ بھی کمرشل انٹرسٹ میں پاکستان کو جوائن کرتے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بلاک جو ہے اس وقت بنتا چلا جا رہا ہے اس خطے میں، جس میں پاکستان شامل ہے، جس میں رشیا شامل ہے، ٹو این ایکسٹینٹ جس میں ایران بھی ہمارے ساتھ ہے، اور دیگر کنٹریز جو ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں، اپنے کمرشل انٹرسٹ کو لیتے ہوئے۔ جب تمام ممالک کمرشل انٹرسٹ کو لیتے ہوئے اپنے ساتھ ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جو ذکر پہنچے گی اس وقت وہ بھارت کو پہنچے گی، جو سب سے زیادہ جو ہے اس کا مخالف ہے۔ اور کلبھوشن جادو کے معاملے کو بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس نے ایڈمٹ کیا کہ وہ پاکستان میں سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے آیا تھا۔ بہرحال جب
कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सूनर और लेटर भारत जो है वो भी इस सीपैक को ज्वाइन करेगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये गवर्नमेंट जो है ये अपने चेहरे पे जो है वो सीपैक का ताज जो है वो सजाना चाह रही है। उसके ऊपर ये भी बात की जा रही है कि जनाब ये इनिशियली जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको साइन किया, फिर लेटर ऑन जो है जरदारी साहब जो हैं वो भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका क्रेडिट ले रही है। लेकिन सीपैक अपनी जगह पे हकीकत है, साथ ही साथ कुछ इसके मनफी पहलू जो हैं उसके ऊपर भी बात की जा रही है। सीपैक से क्या हमारी जो मुकामी इंडस्ट्रीज़ है उनको किसी किस्म का खदशात का सामना है सीपैक पे, क्योंकि IMF चीफ ने वार्न किया है कि चीन जो है सीपैक के थ्रू जो रुकन ममालिक है, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको एक डेट ट्रैप में धकेल रहा है, उनको एक कर्ज़ों के बहरान में, कर्ज़ों की दलदल में धकेलने जा रहा है। क्या सूरत हाल रहती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, और कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हनीफ हजारी ने। आप भी इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। आबिद सुलैरी साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कि सीपैक जो है हम वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नया जाल जो है सनतों का इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से वो बनता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। एक क्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। क्या हकीकत है सीपैक की? देखिए, अगर सीपैक का हम बात करें तो उसको यूँ कहा जा सकता है कि शायद पिछले 5 सालों में हुकूमत ने इसको ओवर सेल किया और अपोजिशन ने इसको ओवर क्रिटिसाइज़ किया। यानी एक तरफ तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी इल्लतें हैं, वो हर चीज़ सीपैक के आने से दूर हो जाएगी, और दूसरी तरफ ये तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान में हर बुराई की जड़ जो है वो सीपैक है, और शायद अगर ये हो गया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डूब जाएगा। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचना होगा। ये मेगा प्रोजेक्ट लाइक ऑल अदर प्रोजेक्ट्स, इसके अपने प्लस पॉइंट्स भी हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और ये अब देखना है कि हमारी अपनी बेटा बस पीपल्स पार्टी पर फोकस हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन चलाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैक्सिमम सीट्स निकाले। सर जी सॉरी, अदलिया और हुकूमत की महाजराई बिल्कुल एक अगले जो मरहले में पहुंच गई है, और ये सॉरी स्टार्टिंग अदलिया और हुकूमत की जो महाजराई है जो पहले से चलती आ रही थी, अब जिस फेज में पहुंची है ये हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल आखिरी है और एक दूसरे के बिल्कुल हेड ऑन हो गए हैं। इसको पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस सूरत हाल को? देखिए, पीपल्स पार्टी का पोजीशन वही है जो पहले था कि हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का टकराव में मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये जो कॉन्फ्रंटेशनल सियासत नून लीग ने अपनाया है इसको मुल्क के मफाद में मियाँ साहब ने should think in the interest of the country and he should step back. ये आपने कर लिया, आपने नहीं पूछा, ऐसे नहीं। चरना साहब ये बताएं, एक तो पीपल्स पार्टी बार बार ऐलान करती है कि हम नाराज लोगों को वापस लाएंगे, अब तक नहीं ना, देखो एक तो अब तक नाराज छोड़ने वालों की बात ही मैं कर रहा हूँ, नाराज लोगों को कितने को वापस लाए। दूसरा, मंशूर का ऐलान पीपल्स पार्टी कब करेगी? हम मंशूर पर काम कर रहे हैं। मेरा कल भी एक काफ़ी तफसील मीटिंग हुआ था हमारा मंशूर पे, और मेरा तो काफ़ी सारे आइडियाज़ है और मेरा तो अभी तक इस पर काम चल रहा है। तो जब तक फाइनलाइज नहीं होता हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक नाराज़ लोगों का ताल्लुक़ है वो हमारा पार्टी का अंदर का मसला है। आई वुडंट गो अकॉर्डिंग टू जो न्यूज़ मीडिया के में आते हैं। कभी कभार मीडिया में आता है कि फ़लाना पार्टी से नाराज़ है, जब असल में पार्टी उनसे नाराज़ है। और लेकिन जो लोग जिनके असल इश्यूज़ है पार्टी के साथ, पार्टी के अंदर इशू होते हैं, हम एक ख़ानदान हैं और हम उन इश्यूज़ को ख़ानदान की तरह हल भी करते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके बाद शाकिर सॉरी नवाज शरीफ ने कहा है कि जिन्होंने जस्टिस साकिब निसार को जज लगाया या सेक्रेटरी लॉ लगाया था उनके दौर में जब सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ उसकी नैब तहकीकात करें। आप क्या इस मुकाम की हिमायत करते हैं? सॉरी मुझे तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या इशू है कि जिन नवाज शरीफ ने खुद सेक्रेटरी लॉ नहीं लगा। आई थिंक ये जो नून लीग का सियासत है ये बहुत गंदी सियासत है कि एक इज़्ज़तदार आदमी के खिलाफ आप इस किस्म की बात कर रहे हो। आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस एंड इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। अगर नवाज शरीफ ये पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ तो आई एम सॉरी, आई डोंट अप्रूव। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत कर रही है, हम फाइनल किसी पर नहीं आए। सर ये बताइएगा, जस्टिस साकिब निसार बार-बार मार्शल लॉ की बात करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा वो आजकल बड़े हंगामी और इंतजामी दौरे भी कर रहे हैं, इन दोनों पर सियासी पार्टी के सरबराह आपका क्या मौक़िफ़? आई थिंक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन इस पे काफ़ी देर से क्वाइट नोन टू ऑल, उसे बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा तो नहीं होता है। मैं बस समझता हूँ कि हम सब अपना काम करें, अपने इदारे में काम करें और ये उम्मीद है हमारा अदालत से। अली फुरकान सब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका बड़ा ये गिला है कि पीपल्स पार्टी कन्फ्रंट नहीं कर रही पंजाब में नून लीग को। तो 2006 में जो आपने एक मोमेंटम बनाया था उसके बाद आपने कहा था असेंबली जाएंगे और असेंबली आप नहीं गए, उस फैसले के ऊपर कोई नाकामी और क्या कन्फ्रंट करने की सूरत हाल में आ चुकी है पीपल्स पार्टी? सर जी, अगर वो मसला था तो लोग तब चले जाते थे। अगर वो अभी उसका जिक्र कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक्सक्यूज़ नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि हमने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब से मुकाबला किया मगर मैंने मुल्क के मुफाद में चीज़ें निकाली हुकूमत से। मैंने सिर्फ अपने आप को बड़ा करने के लिए सियासत नहीं किया, मैंने इस मुल्क का जो पार्लियामेंट्री जॉइंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो अभी सिविलियन और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो रही है इस मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, वो मेरा सियासी जद्दोजहद का नतीजा है। जो आज इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर लगाया गया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जद्दोजहद का नतीजा है। पॉलिटिक्स में हम ये जो सियासत चल रही है, इल्ज़ामात की सियासत, गाली गलोच की सियासत, ये भी चल सकता है या हम इश्यूज़ पे सियासत कर सकते हैं और हल निकाल सकते हैं। मैं अवाम का मसाइल हल करना चाहता हूँ, मैं हर फ़िरौन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मगर मैं ये भी समझता हूँ कि ज़िया उल हक़ के बाक़ियात के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुशर्रफ के बाक़ियात के साथ देने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इंतखाबात में अभी बातें हो रही हैं, अफवाहें आ रही हैं कि ताख़ीर का शिकार हो जाएगा, आप क्या इस बारे में, आपका क्या मौके में कुछ ऐसी हकीकत नजर आ रही है या नहीं आ रही? इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस टाइम पर होंगे, फ्री फेयर और इम्पार्शल होंगे और एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ एक सिविलियन हुकूमत से लेकर दूसरी हुकूमत तक जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा कारकुन इंतजार कर रहे हैं, मैंने मिलना है सबसे।